Hello students, how are you all? Myself Sangeeta Jain, representing Shiv Jyoti Educational Group Kota. Students, today we will revise chapter 1 numbers. Students, first we will discuss about counting up to crores. Counting up to crores. अब जहाँ करोड्स, लैक्स, 10 lakhs इनकी बात करते हैं, इट मीन्स इट इज़ इंडियन नंबर सिस्टम. So in Indian number system, how we categorize numbers? Indian number system. In Indian number system, students, first is ones period. In ones period, we have 3 digits. 3 digits means this is ones, tens and hundreds. Students, we write like that also. And in second period, this is thousands period. Thousands period. Thousands period में क्या होगा कि आपका 1000 होगा और 10,000 होगा. 1000 means and 10,000. After that, next period is lakhs period. In lakhs period, we have lakh and 10 lakh. lakh में कितना ज़ीरो आएंगी? आपकी 5 zeros. 3 zeros ones period, then thousands and this is lakhs, and after that 10 lakh. This is 10 lakh. After that crores period. In crores period again we categorize crores and 10 crores. Now in crores, this is lakh, then thousand and then ones. And in crores, 10 crores, this is lakhs, thousands and then ones. Understood? We take one example to understand this. Students, suppose we have 5, 4, 6, 3, 2, 8, 1, 7. Now we put commas, and how we read this number in according Indian number system? Look here. First we put these numbers in this table according to their place values. Place values means what is digit is multiplied by place of the number. Place of the number means this is the ones place, tens place, 100, 1000, 10,000, then lakh, 10 lakh, crores. These are the place of the numbers. और इसकी जो face value क्या होगी? Face value means number itself. Understood? तो place value क्या होता है कि जब हम face value को multiply करते हैं place से. Understood? तो suppose this is the 7. तो 7 is multiplied by 1, this is the 7, this is the place value. ये क्या होगी इसकी place value. अब इसको आप टेबल में कहाँ पर पुट करोगे? वंस प्लेस पर है, सो यू राइट एट वंस प्लेस. सेकेंड है आपका 1, तो आपके 1 में कौन से प्लेस पर है? टेंस प्लेस पर है, तो 10 इज इक्वल्स टू 10. सो दिस इज द प्लेस वैल्यू. एंड 1 कहाँ पुट करोगे टेबल में आप? टेंस प्लेस पर. आफ्टर दैट वी हैव 8. 8 इज एट हंड्रेड्स प्लेस, तो क्या हो जाएगी इसके प्लेस वैल्यू? 8 इज मल्टीप्लाइड बाय 100. ये तो इसकी प्लेस हो गई, और ये क्या है? इसके फेस वैल्यू है. प्लेस वैल्यू मीन्स नंबर इटसेल्फ. सो 800 इज प्लेस वैल्यू, और यहाँ पर आप पुट कहाँ करोगे इसको? 100 प्लेस पर. आफ्टर दैट नेक्स्ट डिजिट इज 2.
2 कहाँ पर है आपका? थाउजेंड्स प्लेस पर, तो 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 1000, सो व्हाट इज द प्लेस वैल्यू? 2000। और आप इसको टेबल में कौन से प्लेस पर पुट करोगे आप? थाउजेंड्स प्लेस पर। अंडरस्टूड? नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज 3. 3 is at 10,000 place, so 3 is multiplied by 10,000. This is 30,000. So where we put 3? At 10,000. Next is 6. 6 कौन से प्लेस पर है यहाँ पर? lakhs प्लेस पर, so 6 is multiplied by 1 lakh. So this is 6 lakh. This is the place value. 6 right at lakhs period. And after that 4. 4 is at 10 lakh place. So you write 10 lakh. So what is the place value? 40 lakh. And where we put in the table? At 10 lakhs place. After that we have 5. 5 is at crores place. So 5 is multiplied by crores. Means 1 crore से आप इसको क्या करोगे? Multiply करोगे. So what is the place value? 5 crores. And where we put? At crores place. तो टेबल में आपको इसको अरेंज करना है नंबर को, तो आप इस तरह से करोगे. एंड दीज आर द प्लेस वैल्यूज. प्लेस वैल्यूज को जब हम एक्सपेंडेड फॉर्म में, मीन्स व्हेन वी पुट प्लेस वैल्यू along with addition sign, this is the expanded form of the number. तो expanded form क्या हो जाएगी इसकी? expanded form होगी, this is the 5 crore, 40 lakh, 6 lakh, फिर 30,000, 2,000, 800, 10 and 7. We write along with plus sign. This is 5 crores plus 40 lakh plus 6 lakh plus 30,000 plus 2,000 plus 800 plus 10 plus 7. This is the expanded form. कौन सी फॉर्म है ये? एक्सपेंडेड फॉर्म. और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करोगे आप कि जो इनकी प्लेस वैल्यूज़ हैं उसके अकॉर्डिंग आप प्लेसेस को अरेंज करेंगे. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द नंबर. नाउ इफ नंबर इज गिवन, हाउ वी पुट separate, we put comma or we separate number by comma. कैसे करेंगे? तो according to the periods of the Indian number system. Indian number system में आपका ones period में 3 digits हैं. So from the extreme right position you put comma, counting 3 digits, 1, 2 and 3 digits. ये आपका कौन सा period हो गया? ones period. After that 2 digits in thousands period we put comma after 2 digits. In lakhs period we have 2 digits. तो आप क्या करोगे? 2 digits के बाद comma put करोगे और remaining 2 digits in crores period. So we have only 1 digit. तो यहाँ पर अब separate करने की ज़रूरत नहीं. तो Indian number system में आप क्या करते हो? Extreme right position से start करेंगे. First period में 3 digits और remaining periods में 2 digits आती हैं. Understood students? Now how we convert and how we write number name
नंबर नेम आप कैसे करोगे इसको? सो यू राइट हियर 5 करोड़, 5 crore. Then how many lakhs here? 46. FORTY. 46 lakh. Then how many thousands we have? 32,000. You write 32,000. $817. 817. This is the number name or number in words. Understood? This is the expanded form. ये आपने इसको नंबर में लिखा है. You write in numbers, words, or this is the expanded form of this number. How we place commas according to their place values or periods, and how we arrange the number in tables. Understood, students? Now we take one question from the exercise 1.2. In this, if we have 50 lakh, आपके पास में क्या है? 50 lakh है. एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 सी पार्ट. 50 lakh है आपके पास में एंड यू want to convert into millions. आपको किस में कन्वर्ट करना है इसको? millions में. So how many millions in 50 lakh? तो first you write 50 lakh. This is the 50 lakh. You remove these commas and convert into millions. अब millions किस में आता है? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में आता है. तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या होता है? ईच पीरियड्स डिवाइड इनटू 3 डिजिट्स. मीन्स 3 डिजिट्स एक पीरियड में आएगा, फिर 3 डिजिट्स नेक्स्ट पीरियड में, देन नेक्स्ट पीरियड में 3 डिजिट्स. इंटरनेशनल नंबर सिस्टम. In international number system, students, first period is ones period. Ones, tens and hundreds comes in ones period. In the next period, this is thousands period. In this we have 3 digits, 1000, 10,000 and 100,000. And in the next period, this is million. This is thousands period and millions period. In this we have 3 digits, million, 10 million and 100 million. So each period is divided in three groups, means 3 digits having in one group. वंस पीरियड में भी 3 डिजिट्स हैं, थाउजेंड्स में भी 3 हैं और मिलियंस में भी 3 हैं. सो व्हेन वी पुट कॉमा अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, we put comma after every 3 digits from the extreme right of the number. So in this we have 1, 2 and 3 digits, we put comma. After that 1, 2 and 3 digit we put comma. So in 50 lakh how many millions are there? 5 millions. This is thousands period और ये कौन सा है आपका? वंस पीरियड है. और ये कौन सी पीरियड में आएगा? मिलियंस में. So how many millions are there? 5 millions. So 50 lakhs is equals to how many millions?
5 millions. Now we take one more example to understand this international number system. This is 83005389. Again we put comma according to international number system. तो आपका ये कौन से पीरियड में जाएगा? दिस इज वंस पीरियड, वंस और वंस टेंस और हंड्रेड्स हैं, तो ये कौन से पीरियड में जाएगा आपका? वंस में. आफ्टर दैट दिस इज 1000, 10,000 and 100,000, तो ये कौन से पीरियड में आ जाएगा आपका? थाउजेंड्स पीरियड में. एंड नेक्स्ट ये आपका किस में जाएगा? मिलियंस पीरियड में. सो वी पुट कॉमा आफ्टर एवरी 3 डिजिट्स फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट. तो आपका 8, 9 और 3 के बाद में आप कॉमा पुट करोगे, फिर 5, 0, 0 के बाद में कॉमा पुट करोगे, और 3 और 8 आपका मिलियंस में जाएगा. नो नीड टू पुट कॉमा आफ्टर 83. एंड हाउ वी रीड दिस? 83,05,000. यहाँ पर 0 और 0 है, सो वी रीड 5,389. स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल सिस्टम नंबर सिस्टम और इंडियन नंबर सिस्टम में जो डिफरेंस है वो क्या है कि आपका जो थाउजेंड्स तक है वो तो सेम रहता है. आपके चेंजेस कहाँ पर आते हैं? 100,000 से, और फिर यहाँ पर मीन्स लेफ्ट में जो भी डिजिट्स होती हैं वहाँ पर क्या होता है आपका? 1000, 10,000, देन लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ होता है. और यहाँ पर क्या होता है? 100,000, देन मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियंस. Understood students? Now how we write in numbers? This is 800395182 है सपोज आपके पास में, और आपको इसको नंबर, नेम और वर्ड्स के फॉर्म में लिखना है. How we write this? This is once period, this is thousands, and this is millions. So how many millions are there? 800 millions. So you write 800 million. $800 million, 395,000. ये किस में आ रहा है आपके पास में? थाउजेंड्स पीरियड में. So you write 395,000. $395,000 182. Understood? Now how we compare the numbers? आपको numbers को compare करना है तो आप कैसे compare करोगे? Students, numbers को compare करने के लिए first you count the digits, number of digits. 2 नंबर्स होंगे कंपैरिजन के लिए, कोई सिंगल नंबर में तो कंपैरिजन होता नहीं है. सो वी हैव 2 नंबर्स व्हेन वी कंपेयर द नंबर्स. एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 बी पार्ट. 833,409 and 92489. आपको बताना है विच नंबर इज ग्रेटर और स्मॉलर. जो भी कंपैरिजन होता है तो आप क्या करोगे उसमें? तो फर्स्ट थिंग कि फर्स्ट वी काउंट नंबर ऑफ डिजिट्स. नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करके और हम बता सकते हैं कि कौन सा नंबर स्मॉलर है और कौन सा ग्रेटर है. 1 2 3 4 5 6 है यहाँ पर एंड वी हैव 5 डिजिट्स. इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं दिस नंबर इज स्मॉलर, सो वी पुट दिस साइन. अंडरस्टूड?
If number of digits are same, that time what we will do? Suppose we have 2, 5, this is A part, 2, 5, 4, 3, 4 and another number is 5, 2, 4, 3, 4. अब क्या करोगे आप इसमें? सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, सो लेफ्ट मोस्ट पोजिशन से हम क्या करते हैं? डिजिट्स को कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं. नंबर मीन्स जो डिजिट आपकी ग्रेटर होगी वही नंबर आपका क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा. वी हैव 5 इज ग्रेटर हियर, सो विच नंबर इज ग्रेटर? दिस नंबर इज ग्रेटर. स्टार्टिंग में ही पता चल रहा है आपको सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो आप क्या करोगे? लेफ्ट साइड से मीन्स हाईएस्ट प्लेस से कंपेयर करना स्टार्ट करोगे और विच इज ग्रेटर दैट नंबर इज ग्रेटर. मीन्स जो डिजिट आपकी स्टार्टिंग में पता चल रहा है यहाँ पर 2 और 5 में 5 इज ग्रेटर, तो ये नंबर बड़ा हो गया. इफ फर्स्ट डिजिट इज सेम, देन व्हाट वी विल डू? सपोज वी हैव अनदर एग्जाम्पल. सी पार्ट ऑफ दिस 5, 3, 6, 7, 8, 5 and 5, 3, 8, 7, 8, 5. Look here. First we count number of digits. We have 6 digits और यहाँ भी 6 है. तो सेकंड ऑप्शन क्या है कि लेफ्ट मोस्ट डिजिट से आप काउंट करना कंपेयर करना स्टार्ट करोगे. वी हैव 5 बोथ आर इक्वल, तो हम नेक्स्ट डिजिट को कंपेयर करेंगे. वी हैव 3, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है. इट मीन्स अभी तक तो दोनों इक्वल हैं. अब आप किस पर जाओगे? नेक्स्ट डिजिट पर. यहाँ ये 6 है और ये 8 है. विच इज़ ग्रेटर? 8 इज़ ग्रेटर, तो कौन सा नंबर ग्रेटर हो जाएगा? दिस इज. अंडरस्टूड? दिस इज द कंपैरिजन ऑफ नंबर्स. और इसी मेथड से हम क्या करेंगे? कंपैरिजन करके और नंबर्स को अरेंज करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? नाउ स्टूडेंट्स, सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर ऑफ द नंबर्स. सक्सेसर मीन्स यू always learn about it. Successor means greater number means when we add 1 in any number we get successor और -1 करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है? predecessor. Predecessor means before number and successor means after number. We take one question number. Suppose we have 2, 5, 4, 3, 4. अब आपको इसका सक्सेसर फाइंड करना है, तो सक्सेसर के लिए क्या करोगे? +1 करोगे. +1 कौन सी प्लेस में होगा? 1 प्लेस पर ही होगा. डेफिनेट सी बात है, एडिशन, सिंपल एडिशन. सो व्हाट इज द सक्सेसर? 2, 5, 4, 3, 5 हो जाएगा. यहाँ पर 4 + 1 क्या होता है? 5. और प्रीडिसेसर फाइंड करना है तो क्या करोगे आप? -1 कर दोगे इसमें से. -1. अब -1 भी 1 प्लेस से स्टार्ट करते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन. सो 4 - 1 3. सो व्हाट इज द आंसर? 2, 5, 4, 3, 3. This is the predecessor and this is the successor of the number. Now students, rounding of numbers or estimation of numbers. इसका क्या meaning होता है? Rounding off or estimation, we already discussed in the earlier videos कि जब आपको approximate values find करनी होती है तो हम राउंडिंग ऑफ नंबर्स मीन्स राउंड ऑफ कर देते हैं नंबर्स को. अब राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट, टू द हंड्रेड्स प्लेस एंड थाउजेंड्स प्लेस. हाउ वी विल डू दिस? राउंडिंग ऑफ नंबर्स. फर्स्ट वी कंसीडर नियरेस्ट टेंस. अब टेंस प्लेस को राउंड ऑफ करना है तो हम कैसे करेंगे? वी टेक वन एग्जाम्पल. टू, 3, 4, 5, 8. सपोज वी हैव दिस नंबर. अब नियरेस्ट आपको टेंस प्लेस को राउंड ऑफ करना है. वी ऑब्जर्व वंस प्लेस. नियरेस्ट टेंस प्लेस राउंड ऑफ करना है तो ऑब्जर्व कौन से प्लेस को करोगे आप? वंस प्लेस को. मीन्स ये दिस इज द टेंस एंड दिस इज द वंस, तो कौन सी प्लेस होगी? बिल्कुल इसके पास में जो राइट साइड में है उसको ऑब्जर्व करना है आपको.
दिस इज 8, 8 इज ग्रेटर देन 5, तो आप जिस प्लेस को राउंड ऑफ कर रहे हो, आप कौन सी प्लेस को राउंड ऑफ कर रहे हो, आप 10th प्लेस को राउंड ऑफ कर रहे हो, तो आप उसमें +1 कर दोगे और जो आपका 1st प्लेस है इट बिकम्स 0, और जो लेफ्ट साइड वाले डिजिट्स हैं वो आपकी सेम रहेंगी, एज इट इज़ रहेंगी। सो क्या हो जाएगा 2, 3, 4, 6 एंड 0। तो 10th प्लेस को आपने राउंड ऑफ किया, तो आपने जिस प्लेस को मीन्स 10th प्लेस को राउंड ऑफ किया तो आपने 1st प्लेस को ऑब्जर्व किया, इट इज़ ग्रेटर देन 5, तो आपने +1 कौन से प्लेस में किया है, 10th प्लेस में, और जो राइट साइड वाली डिजिट है वो आपकी 0 हो जाएंगी, लेफ्ट वाली एज इट इज़ रहेंगी। सेम नंबर को मुझे 100 प्लेस को राउंड ऑफ करना है, तो 100 प्लेस को राउंड ऑफ करने के लिए आप क्या करोगे, यू ऑब्जर्व 10th प्लेस, 10th प्लेस को ऑब्जर्व करेंगे। लुक 100 प्लेस को राउंड ऑफ करना है तो कौन सी प्लेस को ऑब्जर्व करेंगे हम, 10th प्लेस को, मीन्स इसके ठीक पास वाला जो राइट साइड में है। अब इसमें क्या होगा, इट इज इक्वल्स टू 5, क्या है यहाँ पर इक्वल्स टू 5 है। अकॉर्डिंग टू रूल क्या होता है कि इफ वी हैव इक्वल टू 5 और ग्रेटर देन 5, तो आप जिस प्लेस को राउंड ऑफ कर रहे हो यू ऐड 1 ऑन दैट प्लेस, और आपके राइट साइड वाले डिजिट्स 0 हो जाएंगी और लेफ्ट साइड वाले एज इट इज रहती हैं। तो यहाँ 5 है तो +1 कौन से प्लेस में होगा आपका, 100 प्लेस में, इट बिकम्स 5, और 10th और 1st प्लेस क्या हो जाएगा आपका 0, ये राइट साइड में है, और ये आपका एज इट इज रहेगा 3 और 2। दिस इज द राउंड ऑफ नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 100 मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया। ये वाला पहले जो मैंने किया था 2, 3, 4, 5 की प्लेस पर क्या आ जाएगा 6, और यहाँ 0, ये नियरेस्ट 10th प्लेस को राउंड ऑफ किया था। सेम नंबर को हम क्या करते हैं 1000th प्लेस को राउंड ऑफ करते हैं, नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 1000 करने के लिए सेम रूल विल अप्लाई। अब यहाँ पर आपके पास में यही नंबर है, 1000th प्लेस को राउंड ऑफ करना है तो कौन सी प्लेस ऑब्जर्व करोगे आप, यू ऑब्जर्व 100th प्लेस, इसके ठीक पास वाली प्लेस जो राइट साइड में है। इट इज 4 लेस देन 5 है ये, तो 5 है लेस देन, तो यहाँ पर +1 होगा क्या, नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा, और आपकी जो राइट साइड वाले डिजिट्स हैं कौन सी राइट साइड में, 100, 10s और 1s हैं, इट बिकम्स 0, एंड जो लेफ्ट साइड वाली है वो एज इट इज रहेगी, तो क्या हो जाएगा नंबर आपका 2, 3, 0, 0, 0। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? नाउ वी विल डिस्कस some questions from exercise 1.4. Question number 3, E part, 5, 2, 6, 4, 3, 3, 5, 2, 6, 4, 3, 3, round off to the nearest 1000, आपको इसको 1000 प्लेस पर राउंड ऑफ करना है। Now what you will do, 1000 प्लेस को आपको राउंड ऑफ करना है, you observe 100 प्लेस, it is 4 लेस देन 5 है ये, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर +1 होगा क्या, no, it remains as it is, और आपका जो 100s, 10s और 1s प्लेस है इट बिकम्स 0, एंड 6 और लेफ्ट साइड वाला तो एज इट इज रहेगा ही, सो दिस इज द राउंड ऑफ नियरेस्ट 1000। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज Rahul's landline number is 2623 2623 4875. This is question number 1 word problems. Now write its number name both in Indian and international number system. आपको इसको इंडियन और इंटरनेशनल नंबर दोनों सिस्टम में बताना है। तो फर्स्ट वी राइट इन इंडियन नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम में क्या होगा, वी पुट कॉमास आफ्टर फर्स्ट पीरियड में 3 डिजिट्स के बाद एंड रिमेनिंग 2 डिजिट्स के बाद में। तो ये क्या हो गया, वंस पीरियड, दिस इज थाउजेंड्स, दिस इज लाख एंड दिस इज करोड्स। सो 2 करोड्स
2,62 lakhs 34,000 875 एंड अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या करोगे आप? 3 डिजिट्स के बाद में कॉमास पुट करोगे, यू सेपरेट बाय 3 डिजिट्स. तो दिस इज मिलियंस पीरियड, दिस इज थाउजेंड्स पीरियड एंड दिस इज वंस पीरियड. हाउ मेनी मिलियंस आर देयर in international number system? This is 26 million 234,000 875. Now students, we take one more question number 12. So question number 11. Write the smallest odd number that can be formed using the digits. आपको क्या करना है? डिजिट्स को यूज करते हुए नंबर्स को फ्रेम करना है, बनाना है. अब कौन सा नंबर बनाना है? द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स. स्मॉलेस्ट ऑड नंबर. अब ऑड नंबर है तो वंस प्लेस पर कौन से डिजिट्स आनी चाहिए? या तो 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो. इनमें से कोई डिजिट आएगी तो नंबर कौन सा होगा आपका? ऑड नंबर होगा. सो डिजिट्स आर 8. दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 1.4. डिजिट्स आर 8, 7, 5, 3, 0, 2, 1 एंड 4. अब आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो यू अरेंज डिजिट्स इन असेंडिंग ऑर्डर. तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7 और 8. अब आपको पता है कि 0 हम लेफ्ट मोस्ट प्लेस पर नहीं पुट कर सकते हैं, तो आप इंटरचेंज करोगे इन डिजिट्स को. अब यहाँ पर ऐड 8 है तो 8 तो आपका क्या बना रहा है? इवन नंबर. आपको ऑड नंबर बनाना है तो यू इंटरचेंज दीज 2 डिजिट्स. सो दिस इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर by framing these digits. Understood students? Now this is the answer. Hope you understood this revision video. Students, keep revising, practice more and more. Have a nice day.